بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے اور زکوٰۃ کی کئی برکات ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے انسان پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے انسان پر آنے والے آسمانی اور زمینی حادثات ٹل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ میں نکالیں۔ اور زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے سخت وعید آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے جو اللہ کا حق ہے زکوٰۃ وہ نہیں نکالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو جو بھی زیورات ہیں ان کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے اس زکوٰۃ نہ نکالنے والے کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ حدیث کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کو روک کر رکھتے ہیں، تو ان کے اس مال کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑا سانپ بنائیں گے، اژدہا بنائیں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نشان ہوں گے، اور پھر اس اژدھے سانپ کو اس کے گلے کے اندر یوں ہار اور توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے میں یوں لپٹ کر کے اور اس کو دونوں جبڑوں سے یوں پکڑ لے گا اور پھر کہے گا انا مالو کا انا خنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں قرآن و احادیث کے اندر زکوٰۃ نہ نکالنے پر، اس لیے ہم مکمل اپنے مال کی حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو کلپ کے اندر زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آج ایک اور مسئلہ، کئی لوگوں کے سوال آئے، کئی لوگوں نے پوچھا، اس لیے میں نے سوچا ویڈیو بنا کر کے بھیج دوں تاکہ عام لوگوں کا فائدہ ہو جائے، سب کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے۔ زمین کی پیداوار کا زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ زمین کی پیداوار پر کتنی زکوٰۃ نکالیں؟ ہمارے ہندوستان کی جو زمینیں ہیں یہ جمہور فقہا اور جمہور علماء کے موقف کے مطابق عشری زمینیں ہیں، ان میں عشر دیا جاتا ہے۔ عشر 10ویں حصے کو بولتے ہیں۔ عربی کے اندر عشرۃ کے معنی ہوتا 10۔ جب آپ عربی کی گنتی پڑھیں گے نا، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ،
अशरतुन, तो 10 के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है अशरतुन, 10। उसी अशरतुन से उश्र बना है, 10वां हिस्सा। यानी हिंदुस्तान की जो ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों के अंदर पैदावार में से 10वां हिस्सा निकाला जाएगा। उसकी तफसील फ़ुक़हा ने यूँ लिखी है कि ऐसी ज़मीनें जिस ज़मीनों की फसल बारिश के पानी से तैयार हुई हो, तो उसमें से मुकम्मल 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर अक्सर, राजस्थान के अक्सर इलाके में जब बारिश का मौसम आता है, बारिश पड़ती है, तो तमाम के तमाम लोग बारिश के पानी से खेती करते हैं। ये जो बारिश के पानी से खेतियाँ पक कर तैयार हुई है, चाहे आपकी ग्वार हो, बाजरा हो, जो भी फसल तैयार हुई है आपकी, इस फसल के अंदर आपको 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में निकालना है। मिसाल के तौर पर आपके खेत में 10 बोरी धान हुआ है, तो आपको 10 में से 1 बोरी, 10 का 10वां हिस्सा 1 बोरी है, 1 बोरी अल्लाह की राह में देना है। और अगर आपके खेत में 20 बोरी हुआ है, तो आपको 2 बोरी अल्लाह की राह में देनी है। अगर आपके खेत में 30 बोरी धान हुआ है, तो 3 बोरी आपको अल्लाह की राह में देना है। 4 बोरी हुआ है, 40 बोरियां हुआ है, तो 4 बोरी देना है। 50 बोरी धान हुआ है, तो 5 बोरियां देना है। और अगर 100 बोरी हुआ है, तो फिर 10 बोरियां देना है। 10 बोरी के ऊपर 1 बोरी, यानी 100 किलो के ऊपर 10 किलो देना है। इस हिसाब से आप इस ज़मीन की पैदावार का ज़कात निकालेंगे। और अगर ज़मीन से जो फसल पैदा हुई है, ये बारिश के पानी से नहीं हुई है, बल्कि ट्यूबवेल का पानी है या ख़रीदा हुआ पानी है, जिस पर हमने पैसे लगा करके पानी ख़रीद के उसकी सिंचाई की है, तो इसमें निस्फ उश्र है, यानी 20वां हिस्सा है। मिसाल के तौर पर हमारे इलाके के अंदर और राजस्थान के अंदर बहुत सी जगह पर बहुत से लोगों के मुरबे हैं या बेरे हैं, तो उसमें ये लोग क्या करवाते हैं, ट्यूबवेल करवाते हैं। अब ट्यूबवेल के अंदर एक तो ट्यूबवेल करवाने का ख़र्चा, फिर उसमें लाइट का ख़र्चा, तो बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इतने ख़र्चों के बाद जा कर के इनकी फसल तैयार होती है, चाहे वो ज़ीरे की फसल हो, या वो आपकी ईसबगोल की फसल हो, या सरसों की फसल हो, या कोई और फसल हो। जो भी फसल आपने बोई है, इस ट्यूबवेल के पानी से या कोई और पानी जो आपने पैसे दे कर के आप पानी ला रहे हो, और उस फसल की सिंचाई पैसे दे कर के पानी से करवा रहे हो, तो इसमें से 20वां हिस्सा निकालना है। मिसाल के तौर पर आपके मुरबे में या आपके बेरे में 100 किलो ज़ीरो हुआ है, तो 100 किलो में आपको 5 किलो अल्लाह की राह में देना है। और अगर 100 बोरी आपका जीरो हुआ है, तो 100 बोरी में से 5 बोरी ज़कात निकालनी है, 5 बोरी अल्लाह की राह में देनी है, 20वां हिस्सा निकालना है। इसी तरीके से एक और मसला है, ये भी लोगों ने पूछा है कि हमारी ख़ुद की तो ज़मीन नहीं है, लेकिन हम बहुत बड़े दुकानदार हैं। हम जब फसल कटती है, जब फसल तैयार होती है, तो फसल तैयार होने के बाद में हम किसानों के पास जा कर के उस फसल को ख़रीदते हैं, ग्वार ख़रीदते हैं, मतीरे का बीज ख़रीदते हैं। तो इनकी ज़कात कैसे निकालें? तो ये जैसे हमारी दुकान में दूसरा सामान है, उसी तरीके से एक दुकान का सामान समझा जाएगा। जब आपकी दुकान पर साल पूरा होता है, आप ज़कात निकालते हो, उस दिन आपकी दुकान में जितना स्टॉक है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो किराना स्टोर का सामान हो, परचून का सामान हो, या धान हो, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की मालियत का हिसाब लगाएंगे कि आपकी दुकान में जब साल पूरा हो रहा है और ज़कात निकालने का वक्त आ रहा है, ज़कात निकालने की जो तारीख़ है, उस तारीख़ को आपकी दुकान में कितने का माल है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है,
जितने लाख का माल होगा उस माल में 2.5% यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1000 पर 25 रुपये, 1 लाख पर 2500 रुपये के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। इसमें उश्र वगैरह का मसला नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को दीन की सही समझ अता फ़रमाए और अपने अमवाल की हिसाब लगाकर ज़कात निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।